of 5 years, and recently I joined the School of Open Learning. So the association with this particular subject is there of a long back period, because I am doing my PhD in the same area in the social media marketing, and I had been taught this subject there in my graduation, and now I am teaching this subject from last 4 to 5 years. Okay, my sound is not clear. Let me try to adjust. Is my voice clear now? If there is a problem with some students, that means the problem is there with your device. Okay. So I got it. Now let's start the session. Okay, now do not write anything there in the chat box, okay? Otherwise, it would distract me. Okay, so this is your paper, e-commerce. This is today's coverage. We would be discussing about the scope of e-commerce first. Then we'll be talking about the e-commerce based activities. And then we'll be talking about the technical components indulged in e-commerce. Now let me give you a brief about the e-commerce. I think this is not a new term for any one of us, because we had been doing transactions over e-commerce platforms from last 3 to 5 years, if not before that, because this COVID-19 era, this outbreak, has brought us to a situation where we are more inclined towards the electronic based activities. If I would say before 2019, we were familiar with the e-commerce platforms and we had been doing transactions over these platforms, but somewhere we were a little reluctant because we had a habit, we were habitual to the physical shopping. But when this COVID-19 outbreak happened in the starting of 2020, when it reached India, we realized that there are many other sophisticated alternatives available with us, where we can do shopping and we don't even need to go out of our houses. So that is how I would say that e-commerce emerged in India, because before that, before the 2019 2020, it had its presence, but only in some of the area, in some of the urban cities. But after this outbreak, we started shopping over e-commerce platforms so frequently and we became habitual to it. So e-commerce, what is e-commerce in the literal way? E-commerce, when you do transactions, when you do shopping, when you purchase something over any electronic platform where the seller is there and a buyer is there, that particular transaction, that relation would be known as the e-commerce or e-commerce activity. Here we head towards the formal definition of e-commerce. So e-commerce or electronic commerce, of course,
is the activity of electronically buying or selling of products on online services or over the internet. So basically, here we purchase something as a customer, or if we are the seller, we are selling something over an electronic platform. That electronic platform can connect us through the internet, or we can also connect to a purchaser or a seller over telephone. So if we are purchasing something over telephone, that would also be considered as e-commerce. However, the internet is not involved here. So internet or telephone or any other way where you are transacting with people over any electronic device. That electronic device can be your laptop, your computer, your television, the smart television, or like we have some channels, Home Shop 18, something like that. So there they advertise on television, and then we make a call to them, and then we purchase products. So these things are known as the electronic commerce activities, or they would come under the purview of e-commerce. E-commerce draws on technologies such as mobile commerce, electronic fund transfer, supply chain management, internet marketing, online transaction processing. Here we have a request from some of the students that I need to explain in Hindi. अच्छा ठीक है. Let me explain in Hindi as well. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स जो है, आप या तो इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं, जहां पे यू हैव एन इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट के थ्रू, जैसे हमारा Amazon है, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है. सो इंटरनेट के थ्रू आप किसी भी सेलर से कनेक्ट कर सकते हैं. बट अलॉन्ग विद दैट, उसके साथ साथ आप किसी सेलर से अगर फोन पे कनेक्ट कर रहे हैं, सपोज टेलीविजन में आपने देखा होगा होम शॉप 18 एक चैनल है, वहां पर दे यूजुअली सेल प्रोडक्ट्स. तो अगर किसी प्रोडक्ट को पसंद करके आप उनको कॉल करके कहते हैं और वो आपको डिलीवर करते हैं और आप पैसा ट्रांसफर करते हैं, सो वहां पे इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज कर रहे थे ट्रांजैक्शन के लिए, या फिर आपने वो प्रोडक्ट किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे देखा, इसीलिए वो भी आपका ई कॉमर्स एक्टिविटी के अंडर आएगा. मैंने अभी तक आपको ये समझाया है. Is it clear now? एक second, let me call SOL people so that they can mute the chat. Give me a minute. Otherwise, you would keep on talking over chats and it would keep on distracting me. हाँ जी बच्चों, मैंने म्यूट कर दिया था अपने आप को और माइक भी ऑफ, कैमरा ऑफ कर दिया था, बिकॉज मैं SOL में कॉल कर रही थी.
Yeah, I have a query or a suggestion there. Let me see. ठीक है, आपको नोट्स नहीं मेरी पीपीटी मिल जाएगी. हाँ जी, तनीषा हांडा कहती हैं कि if we use some physical shop to purchase goods but use an electronic medium to pay, will it be considered e-commerce? So it would be considered partial e-commerce because you are making an electronic payment. Electronic payment is a part of e-commerce but it cannot define the whole e-commerce. तो आप उसको e-commerce का नाम नहीं दे सकते, लेकिन ये e-payment कहलाएगा आपका बस, या फिर इट इज अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स जस्ट. ओके, या मैं आपको स्टडी मटेरियल भी दूंगी. मेरी पीपीटीज आपको एक लिंक पर मिल जाएंगे. एक लिंक मैं आपको यहीं पे चैट बॉक्स में एक लिंक दूंगी, उससे आप सीधा एक ड्राइव पर जाएंगे जहाँ पे जितनी भी पीपीटीज होंगी, जैसे जैसे क्लासेस होती रहेंगी मैं वहां पे पोस्ट करती रहूंगी. यू वुड हैव एन एक्सेस टू माय पीपीटीज. along with that you have study material on our website, वो कर सकते हैं आप. और ऑफलाइन क्लासेस तो आपकी स्टार्ट हो ही रही हैं. सो ऑनलाइन क्लास आपकी एक होगी जिसमें ऑल ऑफ यू कैन कनेक्ट. अदरवाइज आपको ऑफलाइन क्लासेस लेनी है तो आप ऑफलाइन क्लासेस भी जाकर ले सकते हैं. हमने बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस उनके लिए लगाई हैं जो किसी भी कारण से नहीं आ सकते, लाइक दिल्ली से बाहर रहते हैं या फिर जॉब करते हैं या कोई भी रीजन है. सो दे कैन कनेक्ट टू अस फ्रॉम द ऑनलाइन क्लास. otherwise they can go for the offline as well. तो साइमल्टेनियसली चलेंगी. जो कोर्स यहाँ पर होगा वही ऑफलाइन में भी होगा. चलिए, now let me go back to my PPT. So we were discussing about the e-commerce. So e-commerce is not just restricted to the e-commerce over the internet, but internet marketing or internet commerce is just a part of e-commerce. जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन्वॉल्व है, फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन, आपका फोन, आप कॉल से कोई चीज मंगवा रहे हैं, या फिर ऑफ कोर्स लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ई कॉमर्स में यूज हो सकते हैं. ई कॉमर्स ड्रॉज ऑन टेक्नोलॉजी सच एज मोबाइल कॉमर्स. मोबाइल कॉमर्स भी ई कॉमर्स का एक पार्ट है. अब आप जब इंटरनेट यूज करते हैं मोबाइल फोन में, और सपोज मैं Amazon से कोई चीज मंगवा रही हूँ, तो Amazon मैं अपने लैपटॉप में भी ओपन कर सकती हूँ या फिर मैं अपने फोन में भी कर सकती हूँ. तो जब मैं अपने लैपटॉप में ओपन कर रही हूँ तो दिस इज जस्ट ई कॉमर्स. बट जब मैं सेम Amazon की एप्लीकेशन अपने मोबाइल पे ओपन कर रही हूँ तो वो मोबाइल कॉमर्स कहलाएगा. तो उसमें इतना कोई डिफरेंस नहीं है. बस when you are using your mobile as the electronic device to do the commerce activity would be known as mobile commerce. इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, ये जो तनीषा ने पूछा था, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर तो ई कॉमर्स का ही पार्ट है फंड्स ट्रांसफर करना. जैसे ई बैंकिंग, अगर मैंने कोई ट्रांजैक्शन की है अपने बैंक के साथ या फिर किसी और को पैसे भेजे हैं, उसमें बैंक में इन्वॉल्व है, मैंने पेटीएम के थ्रू किया है या फिर गूगल पे के थ्रू किया है, तो ये भी ई कॉमर्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, क्योंकि ये भी एक तरीके की कॉमर्स एक्टिविटी है. बैंक्स जो है वो भी कॉमर्स में इन्वॉल्व है, वो भी एक तरीके का व्यापार कर रहे हैं. वो आपके पैसे को अपने पास रखते हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट देते हैं,
लेकिन उसी पैसे को आगे यूज करते हैं। तो उनका भी एक तरीके का व्यापार है। इसीलिए जब भी हम ई बैंकिंग भी यूज करते हैं वो भी ई कॉमर्स का ही एक पार्ट होता है। किसी को भी फंड्स ट्रांसफर कर रहे हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का पार्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स नहीं होता है लेकिन उसका एक पार्ट होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब है कि आपके कुछ सप्लायर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं Amazon पर एक सेलर हूँ, कुछ चीजें मैं Amazon पर बेचती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन्स। अब मोबाइल फोन्स को मैं तो कस्टमर तक पहुंचाती हूँ, लेकिन कस्टमर से पहले मुझे वही मोबाइल फोन सप्लायर से लेने होते हैं। तो जब मैं सप्लायर से भी एक कनेक्शन बना कर लेती हूँ मोबाइल के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू, तो वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। तो अभी तक तो आपने देखा होगा कि बायर टू सेलर और सेलर टू बायर ट्रांजैक्शन चलते हैं, लेकिन सेलर टू सेलर भी आपने सुना होगा, बिजनेस टू बिजनेस भी सुना होगा। तो वो एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है जिसमें आप कनेक्ट करते हैं अपने सप्लायर्स से और अपने डिस्ट्रीब्यूटर से इलेक्ट्रॉनिक चेन के थ्रू। नेक्स्ट, इंटरनेट मार्केटिंग। इंटरनेट मार्केटिंग का मतलब है कि आप जो चीज बेच रहे हैं उसको प्रमोट भी अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे कर रहे हैं तो दैट वुड आल्सो बी अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि Amazon पे अगर आपने कोई चीज सर्च करी है और उसके बाद अपना फेसबुक अकाउंट खोला है तो उस पे उसी चीज की एडवर्टीजमेंट आने लगती है। इट इज अ काइंड ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे होती है। तो जब जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो सिर्फ ट्रांजैक्शन तक ही वो चीज सीमित नहीं होती, उसकी एडवर्टीजमेंट भी की जाती है, उसके डिस्काउंट्स भी आपको दिए जाते हैं। तो ये सारी जब एक्टिविटीज इंटरनेट पर होती हैं तो वो भी ई कॉमर्स का पार्ट होती है। नेक्स्ट है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। जब आप कोई चीज Amazon से खरीदते हैं तो आपने उनको पेमेंट कर दी। पेमेंट आपने चाहे गूगल पे के थ्रू की या पेटीएम या Amazon पे के थ्रू की, तो उसके लिए एक ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होती है। सो दैट वुड आल्सो बी अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। अब सिर्फ आपने कोई चीज खरीदने के लिए आपने रिक्वेस्ट डाली, ऑर्डर किया, वहां से वो चीज डिलीवर हो गई, इनके बीच में भी काफी डेटा इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल दे हैव डेटा अबाउट योर करंट एड्रेस, they have data about your date of birth. Along with that, they have information about your email ID, your phone number. Sometimes it has an access to your Google account as well. आप कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, जब आप Gmail से कनेक्ट करते हैं तो they have an access to your location as well. So this is known as the electronic data interchange. So it is also a part of e-commerce. Inventory management systems. Inventory management systems means कि आप अपनी इन्वेंट्री को, इन्वेंट्री क्या होती है, स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल मैं मोबाइल फोन बेच रही हूँ Amazon पर। अब Amazon पर बेचने के लिए मुझे थोड़े बहुत मोबाइल अपने पास रखने पड़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का एक फायदा होता है कि जब आपके पास ऑर्डर आया है तो आप विद इन 2-3 आवर्स कहीं से अरेंज करा के भी दे सकते हैं। अनलाइक फिजिकल स्टोर में आपके पास कोई खरीदने आया है, अगर आपके पास इन्वेंट्री में नहीं है तो वो कहीं और चला जाएगा। लेकिन Amazon पे आपको ये फायदा है कि आपको ऑर्डर मिला है अभी, आपके पास 1-2 दिन का टाइम है, आप किसी और से परचेज कर सकते हैं। तो जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में वो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू किया जाता है। एंड ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन सिस्टम, साथ ही साथ आपसे रिलेटेड सारा डेटा वहां पर फीड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई चीज सर्च की है, ओके, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं अवेलेबल Amazon पे
वो आपको शो करने लगता है, या फिर आपके डेटा को फेच करके आपकी नीड को जानता है कि आप इस तरीके की चीजें खरीद रहे हैं, तो हो सकता है आपको इस चीज की नीड हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कार के लिए सर्च कर रही हूँ कहीं पर, तो कार के साथ वो मुझे अलग अलग एक्सेसरीज भी दिखाएगा कि अगर मैं कार परचेज करती हूँ तो उसके साथ मुझे और क्या चीजें चाहिए होंगी। दिस इज नोन एज द ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन, so that they fetch data from you what you need, and then they provide you services according to your needs and expectations. So this is what e-commerce is. Is there any question? अब मैं क्लास पर आती हूँ, और अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड देन आई वुड अलाउ योर माइक. Yeah, you can raise your hands now if there is any question. ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है आंचल, ऋतिक. पहले मैं ऋतिक को अलाउ कर रही हूँ. या ऋतिक, व्हाट इज योर क्वेश्चन? अनम्यूट योरसेल्फ. आई हैव अलाउड योर माइक. यू आर नॉट ऑडिबल क्लियरली. थोड़ा सा क्लियर बोलिए. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि हेल्पलाइन नंबर होता है, उस पर कॉल किया था ऑफलाइन क्लास के रिगार्डिंग. जब मैंने उन पर कॉल किया तो वो बोलते हैं कि आपकी ऑफलाइन क्लास नहीं होगी क्योंकि आपको ऑनलाइन मैसेज आया है, बट आप बता रहे हैं कि आप ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं. तो वो मेरे को कंफ्यूजन है, ऑफलाइन क्लास आगे होंगी या नहीं होंगी, या ऑनलाइन ही हमें कंटिन्यू करना होगा. देखो, अभी तो तुम्हारी ऑनलाइन चल रही है. ऑफलाइन का भी हमारे माइंड में है कि हम ऑफलाइन आगे स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब तक तुम्हारी ऑनलाइन चल रही है तो अभी ऑनलाइन लेते रहो. जैसे ही तुम्हें ऑफलाइन का मैसेज आ जाएगा, देन यू कैन गो देयर. ओके मैम. एंड मैम जो पीटीपी है, एक वन मोर क्वेश्चन और था मैम. जो पीटीपी आप सेंड करोगे मैम, उसके लिए आप कोई सर्टेन ग्रुप बनवाओगे या आप मतलब डायरेक्ट लिंक दोगे, पहले जैसे नहीं, लिंक आता था? मैं हर क्लास में लिंक आपको दे दूंगी. आप सीधा उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पीपीटी मिल जाएगी. तो मैम मेरी कोई हम्बल रिक्वेस्ट थी, इन केस जैसे आप अगर कोई ग्रुप बनवाते हैं तो उसमें मुझे जरूर ऐड कर लीजिएगा. बट इन केस जैसे कोई बार होता है कि क्लास स्किप हो जाती है, तो उस टाइम की जो पीटीपी है वो कहाँ से अरेंज करूं, तो आप कोई सजेशन देना चाहेंगे उस कंडीशन में? नहीं, क्लास की पीपीटी मिस ही नहीं होगी. आप लिंक तो सेम रहेगा. आप जो आज मैं अगर लिंक दूंगी आपको, तो लास्ट तक वही लिंक रहेगा. आप उस पर जाएंगे तो आपको हर क्लास की पीपीटी उस क्लास के बाद मिल जाएगी. जैसे आज वाली पीपीटी मैं आज शाम तक अपलोड कर दूंगी. मैं आपको एक लिंक दे दूंगी अभी, और वो लास्ट तक लिंक सेम ही रहेगा, तो आपका मिस होगा ही नहीं. ओके मैम. बट इन केस जैसे कोई कनेक्शन इशू आता है, कुछ भी एनी इशू आता है, तो उस कारण से बोल रहा हूँ मैं. हाँ, तो अगर कोई भी ऐसा इशू आता है तो आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं एसओएल से, और आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी. ओके मैम. तो उसके लिए मुझे कैंपस जाना पड़ेगा? नहीं, आप केशवपुरम? कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू मैम. नेक्स्ट क्वेरी है आंचल की. आंचल को अलाउ कर देते हैं हम. हाँ आंचल, नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड रेज योर क्वेरी. आफ्टरनून मैम. गुड आफ्टरनून. मैम मेरे पास सोल का तो कोई मैसेज आता ही नहीं है, तो फिर वो कैसे होगा? आपने फोन नंबर गलत दिया होगा, जाके वो करेक्ट नहीं करो. मैम, फोन नंबर तो सही है लेकिन आता ही नहीं है.
बेटा गलत होगा या फिर कुछ ऐसा होगा क्योंकि बाकी सबको आ रहे हैं आपको नहीं आ रहे, तो देयर मस्ट बी मैम फिश। फोन नंबर तो सही है लेकिन तभी भी नहीं आ रहे। एक बार एसक्यूएल जाकर पता कर लो फिर। ठीक है, अभी मैं क्लास से रिलेटेड आपसे क्वेरी पूछ रही हूँ, आप क्लास से क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछिए। भव्या, अगर क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ही अनम्यूट कीजिए खुद को। ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन हम बाद में ले सकते हैं, अभी क्लास चल रही है हमारी, तो क्लास से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। भव्या, you can unmute yourself if you have any query regarding e-commerce. Okay, Bhavya is not there, I guess. Abhishek Kumar. Okay, next. Yeah, Abhishek. गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. मैम मुझे ये आपसे जानना था कि ई कॉमर्स वर्क कैसे करता है, क्योंकि आप जब बता रहे थे तो आपकी बात प्रॉपरली मुझे समझ नहीं आई। ई कॉमर्स वर्क कैसे करता है मतलब, ई कॉमर्स जो है वो एक टाइप ऑफ कॉमर्स है। पहले क्या होता था कि हम मार्केट में जाके सामान खरीद कर ले आते थे, लेकिन ई कॉमर्स के आने के बाद यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यहाँ पे हमें खुद नहीं जाना, हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू परचेजेस कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स जब भी आप फोन, कंप्यूटर, टेलीविजन या और कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू कोई भी पेमेंट करते हैं या फिर आप परचेजेस करते हैं तो वो ई कॉमर्स का पार्ट कहलाता है। यस मैम। और मैम इसके डिसएडवांटेज क्या क्या होंगे जैसे आपके हिसाब से? अभी मैं डिसएडवांटेजेस पे आऊंगी, एक पूरी स्लाइड मैंने डिसएडवांटेजेस की बना रखी है, आई विल बी डिस्कसिंग देम। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू अभिषेक। नाउ नेक्स्ट इज पवन। पवन, आप क्या पूछना चाहते हैं? अनम्यूट योरसेल्फ। चेतना, तुशांत। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून चेतना। मैम आप एक बार वो डाटा वाला पॉइंट जो था और इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाला पॉइंट, ये दोनों एक बार दोबारा से समझा दीजिए। हाँ, डेटा का क्या है कि आप जब भी किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे साइन इन करते हैं, आई एम श्योर आप किसी न किसी की एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर ही रखी होगी, तो दे आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर डेट ऑफ बर्थ, योर ईमेल आईडी, योर मोबाइल फोन एंड योर एड्रेस। ये तो 4 चीजें वो लेते ही हैं। जी मैम। इसके अलावा भी उनके पास आपका बहुत सारा डेटा होता है जो हमें नहीं पता होता, लेकिन हम कहीं ना कहीं उनके साथ शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मन बना रखा है कि मुझे कोई चीज खरीदनी है, जैसे मुझे लैपटॉप खरीदना है। जैसे ही मैं वहां पर जाके सर्च करती हूँ लैपटॉप, उनके डेटा इन्वेंट्री में चला जाता है। इन्वेंट्री एक अलग चीज है, डेटा इन्वेंट्री एक अलग चीज है। तो यानी डेटाबेस में चला जाता है कि मुझे एक लैपटॉप की नीड है। अब वो क्या करते हैं, जैसे ही मैं नेक्स्ट टाइम जाती हूँ अमेजोन पे, वो मुझे बहुत अच्छे अच्छे लैपटॉप दिखाते हैं और उसकी स्कीम्स दिखाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं एक कस्टमर के बारे में, और ऐसे ही उनके मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं और हर एक के बारे में वो डेटा कलेक्ट करते हैं। और उसी के साथ, जैसे अगर आप फेसबुक पर जाएंगे, जैसे मैंने अमेजोन पे लैपटॉप सर्च किया, उसके बाद मैंने अपना फेसबुक अकाउंट खोला, तो वहां पे भी वो एडवर्टाइज करेंगे लैपटॉप्स के बारे में, क्योंकि उनको पता चल गया है कि मेरे माइंड में है कि मुझे नया लैपटॉप खरीदना है। तो ये तो हो गया डेटाबेस। इसी तरीके से इन्वेंट्री का मतलब है यानी स्टॉक बचा के रखना।
मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास फिजिकल शॉप है, उस पे आप मोबाइल फोन्स बेच रहे हैं, तो आपके पास ज्यादा इन्वेंट्री होनी चाहिए, क्योंकि एकदम से कस्टमर आएगा, आपको साथ के साथ सेल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पे हैं, तो आप इजीली इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा इन्वेंट्री रखने की नीड नहीं है। आज ऑर्डर आया, कल तक मुझे देना है, मैं जाकर परचेज करके लाकर भी दे सकती हूँ अगर इन्वेंट्री में नहीं है, यानी स्टॉक में नहीं है तो। और ई कॉमर्स में इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम भी इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है। जैसे ही मेरी इन्वेंट्री कम होगी, सीधा सीधा साथ साथ मैसेज चला जाएगा मेरे सप्लायर्स को कि मेरी इन्वेंट्री, फॉर एग्जांपल मैं अपनी इन्वेंट्री में 20 मोबाइल फोन्स रखती हूँ, एक की सेल हो गई, 19 हो गए। जैसे ही 19 होंगे, ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाएगा। ये होता है इन्वेंट्री सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इन्वेंट्री सिस्टम। साथ के साथ मेरे सप्लायर को अपने आप मैसेज चला जाएगा कि मेरे 19 फोन्स रह गए हैं, यानी एक की कमी है और उसको जल्दी से सप्लाई किया जाए। तो एक रीऑर्डर क्वांटिटी होती है, वो भी आप इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज कर सकते हैं। आपको हर बार फोन करके नहीं कहना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली ही मैनेज होता रहेगा। तो ये दोनों चीज भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का एक पार्ट है। ओके, थैंक यू मैम। Okay, you're welcome. Next, Tushant. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am, I want to ask that, ma'am, e-business is a part of e-commerce. E-commerce is a part of e-business. इन दोनों का डिफरेंस मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई-बिजनेस एंड ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है सिर्फ ट्रांजैक्शन से दो लोगों के बीच, लेकिन जो ई-बिजनेस है वो एक ब्रॉडर कैटेगरी है, जिसमें हर चीज, बिजनेस का हर पार्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल किया जाता है। बाकी मैं आपको उस स्लाइड में बताऊंगी। ओके मैम, थैंक यू। यू वेलकम। नेक्स्ट अरुण। Ma'am, I Yeah. have a query, ma'am. Ma'am, how we related, ma'am, supply chain to ma'am e-commerce, ma'am? सप्लाई चेन का क्या मतलब होता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट का होता है कि कुछ सप्लायर्स हैं, एक फैक्ट्री है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, फिर कस्टमर्स हैं, या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, फिर होलसेलर्स हैं, फिर रिटेलर्स हैं, और फिर कस्टमर्स हैं। दैट इज हाउ आवर सप्लाई चेन वर्क्स. So in e-commerce, we manage the whole supply chain electronically so that I can order the quantity to suppliers. अब suppliers को भी मैं electronically कह सकती हूँ कि मुझे इतनी क्वांटिटी की जरूरत है। मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स पे भी कंट्रोल रख सकती हूँ इलेक्ट्रॉनिकली, और इसी तरीके से रिटेलर्स और होलसेलर्स पे भी। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि बिजनेस जो है वो सिर्फ कस्टमर्स से ही डील नहीं करता इलेक्ट्रॉनिकली, लेकिन बाकी के जो इंटरमीडिएरीज हैं, सप्लायर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, इन सबके साथ भी ट्रांजैक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है। गॉट इट पवन? Yeah, ma'am. But ma'am, it's ma'am work on ma'am sometime ma'am physical. So ma'am. हाँ, फिजिकली भी होता है, मैं ये नहीं कह रही। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स डजंट मीन दैट एवरीथिंग इज बीइंग डन इलेक्ट्रॉनिकली। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ही इलेक्ट्रॉनिकली हो गया और फिजिकली नहीं होगा। कुछ कुछ चीजों में आपको फिजिकली जरूरत होती है, जैसे कि अगर आप कोई भी सामान मंगवाया है आपने, ठीक है, आपने उसका ऑर्डर तो इलेक्ट्रॉनिकली दे दिया, लेकिन वो डिलीवर तो फिजिकली हो रहा है। या फिर पेमेंट सीओडी का ऑप्शन आपके पास क्यों होता है, कैश ऑन डिलीवरी? बिकॉज हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के साथ, इसीलिए कैश ऑन डिलीवरी, पे ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन होता है। तो इसी तरीके से सप्लाई चेन में भी आप कुछ चीजें इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज कर सकते हैं अगर आप फेमिलियर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से। लेकिन अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, देन you can go for the physical mode as well.
Got it, Pawan? Next, Arun. बोलिए। Next, Shivam. गुड आफ्टरनून Good afternoon. मैम। मैं है ना पूछना चाह रहा था, हमें बुक्स तो अभी तक है ना अवेलेबल कराई गई नहीं है एसओएल की तरफ से। बेटा स्टडी मटेरियल की बात कर रहे हैं आप? यस मैम। तो वो वैसे तो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप कभी भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैम बाकी हार्ड कॉपी भी कॉपी मिल की। जाएंगी, हार्ड कॉपी भी प्रिंट हो रहा है, मिल जाएंगी जरूरी। अच्छा, और मैम अगर तब तक अगर हम कोई बाहर से अगर बुक प्रेफर करना चाहे तो? हाँ, आप ले सकते हैं। ई कॉमर्स कौन के सी? लिए मैं बता सकती हूँ। कौन सी मैम? ई कॉमर्स के लिए आप डॉक्टर सुशीला मदान की एक बुक है, वो ले सकते हैं। सुशीला मदान? हाँ। ओके मैम, थैंक यू मैम। नेक्स्ट, अर्जुन। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम एक्चुअली मेरी एक क्वेरी थी, ये ऑटोमेटेड डाटा कलेक्शन में मेरे को अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया, इसको एक बार एक्सप्लेन कर देंगे आप? हाँ, ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन का क्या मतलब है? 3 वर्ड्स हैं इसमें, ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन। या मैम। ऑटोमेटिकली दीज प्लेटफॉर्म्स, Amazon है जैसे, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, वो आपके डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं ऑटोमेटिकली, जो आपको पता भी नहीं चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी जो आपको एग्जाम्पल दिया, सेम चीज वहीं पर है कि आप कोई भी चीज खरीद रहे हैं, या फिर जब आप उनको गूगल से लिंक कर देते हैं, अपनी जीमेल आईडी से लिंक कर देते हैं, या फिर आप उनको अलाउ कर देते हैं कि आपकी लोकेशन वो जान सके, तो आपने देखा होगा वो सजेशंस आपको उसके अकॉर्डिंग ही देने लगते हैं। तो ई कॉमर्स आजकल इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने स्विगी या फिर जोमेटो पे अपनी लोकेशन ऑन कर रखी है, तो जैसे ही मैं किसी नई लोकेशन पे जाती हूँ, उसके आसपास जितने रेस्टोरेंट्स होते हैं वो उसकी एडवर्टीजमेंट अपने आप मुझे भेजने लगते हैं, या फिर लंच के टाइम पे लंच की एडवर्टीजमेंट आने लगती है, या ब्रेकफास्ट के टाइम पे वो ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस मुझे देने लगते हैं। दिस इज ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन। दे आर कलेक्टिंग डेटा about your tastes and preferences and then giving you customized advertisements। जिस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल, आप जिस तरीके का रहन सहन है आपका, या फिर जिस तरीके का खाना पसंद करते हैं, उसी तरीके की एडवर्टीजमेंट आपको मिलेगी जोमेटो पे या फिर स्विगी पे, या फिर Amazon पे। आप जिस तरीके के ब्रांड्स लेना पसंद करते हैं, आपको उन्हीं ब्रांड्स के कपड़े जब डिस्काउंट आएगा, या फिर उस पे अगर आपको कोई भी चीज मिल रही है, तो उन्हीं ब्रांड्स के कपड़े आपको एडवर्टाइज कराए जाएंगे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको पता है कि आपकी क्या प्रेफरेंसेस हैं। ये होता है ऑटोमेटेड डेटा कलेक्शन। या मैम, समझ में आ गया, थैंक यू। ठीक है अर्जुन। नेक्स्ट, धीरज। धीरज, धीरज। Hello. नहीं है? Yeah. Hello, good afternoon, ma'am. Ma'am, I want to know about the goal of the e-commerce. Goal of the e-commerce. Yes, Just ma'am. to penetrate the market to the fullest. That means अगर मैंने यहाँ पे कोई फिजिकल शॉप लगाई है, तो कौन कौन आ सकता है शॉप पर? आसपास के लोग आएंगे। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉनिकली कोई चीज बेच रही हूँ, तो देयर आर नो बाउंड्रीज। आई कैन सेल टू द पीपल हु आर लिविंग इन दिल्ली, who are living in Kolkata, who are living in Maharashtra or any other location of India, even
outside the boundary of India as well. So this is the main goal कि आप penetration ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं. You are not restricted to a particular area. At the same time, you can easily reach out people within no time. That means आप इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाते एडवर्टीजमेंट करने के लिए या फिर लोगों तक पहुंचने के लिए. सिर्फ एक क्लिक में परचेजेस हो जाती हैं, एक क्लिक में पेमेंट हो जाती है, जो अदरवाइज पॉसिबल नहीं था जब ई कॉमर्स नहीं था. Got it, Dheeraj? Yes, ma'am. Ma'am, otherwise, please tell me about B2B and B2C. Sorry, B2B and C2C what? Yes, ma'am. What do I need to explain about them? मैम दैट्स बिजनेस टू बिजनेस में जैसे हम होता है कि कंपनी के बीच में ऑनलाइन होता है या इसमें भी मतलब जाने माने का वो कुछ होता है? नहीं, इसमें ऑनलाइन ही होता है B2B बिजनेस, लेकिन वो बिजनेस मॉडल्स जो ई कॉमर्स के हैं वो आपके थर्ड क्लास में पढ़ाए जाएंगे, जिसमें B2B, B2C, C2G एंड B2E काफी 6 मॉडल्स हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे, वो थर्ड क्लास में आपका है. ठीक है? ओके मैम, थैंक यू. ओके धीरज. नेक्स्ट मानसी. Mansi? Am I audible? Yes, you are. Hello. Yes, you are audible, Mansi. Hello, ma'am. Yeah, hello. Ma'am, Yeah, what is it? जैसे बुक्स नहीं मिल रही 10 years के एग्जाम्स के लिए. You are not perfectly audible, but I got your question कि आपको बुक्स नहीं मिल रही तो how would you prepare for the exams? So आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे. बुक मैंने आपको बता दी है, पीपीटी मैं दे दूंगी, क्लासेस वुड बी इनफ. तो ये 4 चीजें अगर आप अच्छे से कर लोगे तो यू वुड बी एबल टू अपीयर इन द एग्जाम. या मानसी? Are 10 years enough for the exam? No, don't refer to the 10 years because their answers are not reliable. Ma'am, 10 years enough. नहीं है 10 year enough. मानसी आप सुन नहीं रहे हैं, शायद आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ. Okay. नेक्स्ट. अब ये लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम बिकॉज ऑलरेडी क्लास का टाइम बहुत जा चुका है. निमी. ओके, तो अब हम और क्वेश्चंस नहीं ले रहे हैं ड्यू टू द पॉसिटी ऑफ टाइम. हमारे पास बहुत कम टाइम है, सो वी आर गोइंग बैक टू आवर पीपीटी एंड नाउ वी विल डिस्कस हाउ इट ऑल स्टार्टेड. सो हियर वी हैव गिवन द टाइमलाइन ऑफ ई कॉमर्स. ई कॉमर्स कैसे स्टार्ट हुआ? सो 1979 में फर्स्ट टाइम टेली शॉपिंग स्टार्ट हुई. व्हाट इज टेली शॉपिंग? when you have advertisements there on the television कि आपको ये खरीदना है, इतनी चीज आपको इतना डिस्काउंट मिल रहा है. आप होम शॉप 18 का देखते हैं या और भी चैनल्स हैं जहां पर टेली शॉपिंग की जाती है. सो फर्स्ट एवर ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं, वो इंटरनेट नहीं था. सो फर्स्ट एवर टेली शॉपिंग चैनल वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन 1979. उसके बाद टेली शॉपिंग चलती रही, लेकिन इंटरनेट का इतना बोलबाला नहीं था. फिर 1995 में इट स्टार्टेड विद Amazon. 1995 में they came up with a website where they were selling books, only books. तो Amazon कैसे स्टार्ट हुआ? Amazon एक एप्लीकेशन थी जो सिर्फ बुक्स बेचती थी, कुछ और नहीं था. अब
Amazon ऐसा है जहाँ पे आप एक सुई से लेके कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो वो सिर्फ बुक्स बेचते थे। सो 1995 में दे स्टार्टेड विद सेलिंग बुक्स ओवर द इंटरनेट। उसके बाद आईबीएम ने रिसर्च स्टार्ट किया। 1994 में आईबीएम ने रिसर्च स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उनको 3 साल लगे इस रिसर्च में और लेकर आए वो एक टर्म ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स जो टर्म कॉइन हुआ, कब से ई कॉमर्स एग्जिस्टेंस में आया? 1997 में। फिर 2000 में देयर वाज अ $300 million कैंपेन बाय आईबीएम ऑन ई कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज। तो उन्होंने एक कैंपेन चलाई जिसमें उन्होंने ई कॉमर्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। आईबीएम ने, आईबीएम किस चीज की कंपनी है? जो कंप्यूटर्स बनाती है और इंटरनेट एक्सेस देती है। तो आईबीएम ने सबसे पहले ई कॉमर्स पे रिसर्च करना शुरू किया, इस टर्म को कॉइन किया और फिर उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई 2000 में। फिर 2017 की बात करें तो 0.76% ऑफ जीडीपी वाज कमिंग फ्रॉम ई कॉमर्स एक्टिविटीज। इन 2020 इट हैज ग्रोन टू 1200%, यानी 12 गुना ज्यादा बढ़ गया 17 से लेके 20 में। और 2021 की बात करें so it was expected to reach $84 billion, जो इंडिया की बात कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे हम एक आपको वीडियो दिखाते हैं जिसमें हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स प्रेजेंट किया है। यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स है। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.
e-commerce, how it evolved from 1979 and it has reached to an era where everything is electronic. हम कोई भी चीज खरीदनी है, be it groceries or something, even there are uplas available there on Amazon, तो आप Amazon पे कुछ भी ले सकते हैं. So that is how it has evolved in the countries like India, और जो हमसे advanced country है वहाँ पे बहुत पहले से इसका presence है. एक और वीडियो है. Let me come back to your class. Okay, so that is how the e-commerce has evolved over a period of time. And now, without wasting much of the time, let me directly go to the difference between the e-commerce and e-business. So as there was a query raised by a student कि e-commerce जो है वो क्या e-business का पार्ट है या e-business जो है e-commerce का पार्ट है, तो मैं कहूँगी कि e-commerce जो है वो e-business का पार्ट है. अब जो business है, business आप खुद सोच सकते हैं कि business में कितनी सारी activities involved होती हैं. बिजनेस में आप ट्रांजैक्शन करते हैं कस्टमर के साथ, वो तो एक पार्ट है इसका, लेकिन उसके अलावा आपके कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं, आपके कुछ सप्लायर्स होते हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, आप सोसाइटी से ट्रांजैक्ट करते हैं, सोसाइटी के लिए काम करते हैं, आप गवर्नमेंट के साथ ट्रांजैक्ट करते हैं. तो ये सारी चीजें, यानी कस्टमर तो सिर्फ एक पार्ट हो गया बिजनेस का, उसके अलावा भी आप बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं. सो बिजनेस, ई बिजनेस यानी जब आप सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली करने की कोशिश करते हैं कि आप सप्लायर्स से भी सामान इलेक्ट्रॉनिकली मंगा रहे हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर से भी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली, आप गवर्नमेंट से भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली, आपके जो एम्प्लॉयज हैं आपस में कनेक्टेड है इलेक्ट्रॉनिकली. फॉर एग्जाम्पल, आपने इंटरनेट के बारे में सुना होगा कि आपका इंटरनेट है जो सिर्फ एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज के बारे में बात करता है, उनको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेनिंग दी जा रही है, उनकी रिक्रूटमेंट इलेक्ट्रॉनिकली की जा रही है. तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो ई बिजनेस का पार्ट है. और जो ई कॉमर्स है वो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, यानी जब आप कोई चीज़ बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं या फिर उसकी पेमेंट कर रहे हैं किसी और पार्टी को, वो ई कॉमर्स है. तो हम ये कह सकते हैं ई कॉमर्स जो है वो एक ई बिजनेस का पार्ट है. ई बिजनेस में और भी बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. ई कॉमर्स एक छोटी चीज है, ई बिजनेस एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें ई कॉमर्स को हम फिट कर देते हैं, लेकिन इसमें और भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं. अब हम एडवांटेजेस की बात करेंगे कि ई कॉमर्स के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फायदे हैं हमें ई कॉमर्स को इनकॉर्पोरेट करने के. अदरवाइज तो हमारा फिजिकल कॉमर्स में काम चल रहा था इतने सालों से, लेकिन व्हाई वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स ई कॉमर्स. सो फर्स्ट ऑफ द थिंग्स इज इजी टू सेट अप. It is always easy to set up e-commerce business rather than the physical infrastructure. कोई चीज़ आपको बेचनी है तो आप एक वेबसाइट ज़्यादा इजीली बना सकते हैं एक बिल्डिंग से,
तो जब आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें बहुत टाइम इन्वॉल्व होता है, बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है। लेकिन ई कॉमर्स जो है वो रिलेटिवली थोड़ा इजी है। फ्लेक्सिबल कॉमर्स आवर्स, अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है तो सुबह 9 बजे जाके आपको 10 बजे जाके वो शॉप खोलनी पड़ेगी, रात को आपको 8 बजे वो बंद करनी पड़ेगी। लेकिन ई कॉमर्स में ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप घर पे बैठ के भी अपना बिजनेस चला सकते हैं। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल कॉमर्स आवर्स होते हैं। नेक्स्ट है चीपर देन ट्रेडिशनल कॉमर्स, यानी अगर मैं नॉर्मल कोई शॉपिंग करने जाती हूँ तो वहां पे मुझे महंगी चीजें मिलती हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि उनको उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की कॉस्ट भी निकालनी है, अगर रेंट दे रहे हैं तो वो भी निकालना है, इतने सारे एम्प्लॉयज हैं उनके भी सैलरी निकालनी है, तो कहीं ना कहीं वो ऐड कर जाता है हमारे प्राइस में। लेकिन अगर हमने ई कॉमर्स में देखा होगा ज्यादातर उसमें हमें कम प्राइस पे क्यों मिलता है, क्योंकि मुझे ज्यादा इन्वेंट्री मैनेज नहीं करनी पड़ती, मुझे ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं रखने पड़ते, मुझे वहां पे एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दुकान खड़ी नहीं करनी होती, इसीलिए वो थोड़ा चीपर होता है। नो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, मैंने आपको बताया कि अगर मैं यहाँ पे शॉप खोलूंगी तो कहाँ तक के लोग आ जाएंगे, पंजाब से तो यहाँ पे लेने नहीं आएंगे। लेकिन अगर मैं ई कॉमर्स शुरू करती हूँ तो वहाँ दूर दूर से लोग इजीली परचेज कर सकते हैं एंड आई कैन डिलीवर टू देम। सो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज इतनी नहीं है। गवर्नमेंट सब्सिडीज, ई कॉमर्स में गवर्नमेंट सब्सिडीज भी मिलती हैं, क्योंकि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंडर जो हमारे पीएम ने स्टार्ट किया तो उसमें बहुत सारी ऐसी सब्सिडीज दी जाती हैं अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा चीपर भी है और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। न्यू मार्केट एंट्री, किसी भी न्यू मार्केट में एंट्री करने में हमें आसानी होती है, क्योंकि नॉर्मली अगर मुझे कोई शॉप खोलनी है तो मुझे फीजिबिलिटी देखनी पड़ेगी, अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस शुरू करना है तो आई कैन इजीली स्टार्ट एनी बिजनेस। लोअर लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री, लोअर लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री मैंने आपको बताया था कि अगर मेरी शॉप है तो मुझे 100 मोबाइल फोन रखने होंगे, अगर मैं अमेजोन पे बेच रही हूँ तो सिर्फ 10 मोबाइल फोन रख के भी मैं बेच सकती हूँ, क्योंकि जब ऑर्डर आएगा मैं बाहर से खरीद के ले आऊंगी। लोअर कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स, आपको मार्केटिंग और सेल्स में इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इजीली फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट डाल सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप इजीली एडवर्टाइज कर सकते हैं। अगर आप बैनर्स लगाते हैं या फिजिकली न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हैं तो वो आपको महंगी पड़ती है, आप किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू या ईमेल भेज के अपने आप को एडवर्टाइज कर सकते हैं। अब हमारी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये डिसएडवांटेजेस है लैक ऑफ पर्सनल टच, जो हम ज्यादातर फेस करते हैं। हम काफी चीजें अमेज़न से लेना पसंद नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वो कपड़ा कैसा है, या ग्रोसरीज मैंने सपोज 1 किलो आलू मंगा लिए तो अब वो हो सकता है खराब दे दें मुझे, तो इसीलिए यहाँ पे लैक ऑफ पर्सनल टच होता है। तो लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से थोड़ा दूर जाते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं। तो यूजुअली लोगों को अगर कपड़े खरीदने हैं तो वो शोरूम में जाके खुद ट्राई करके लेना पसंद करते हैं रादर देन परचेजिंग फ्रॉम एनी ई कॉमर्स चैनल। डिलीवरी टाइम, अब मुझे इंस्टेंटली कोई चीज चाहिए तो मैं शॉप पे जाके खरीद लूंगी, क्योंकि अगर मैं आज अमेज़न पे ऑर्डर करूंगी तो कल से पहले नहीं आएगा, अगर मैं प्राइम मेंबर भी हूँ तो डिलीवरी में जो टाइम लगता है उससे बचने के लिए लोग ई कॉमर्स की जगह फिजिकल शॉप्स पे जाते हैं। सिक्योरिटी इश्यूज, कभी कभी हम पेमेंट कर रहे होते हैं, वो पेमेंट फेल हो जाती है, पैसे कट जाते हैं, वापस नहीं आते, इस तरीके के बहुत सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। या कभी कभी हमारी क्रेडिट कार्ड की या डेबिट कार्ड की डिटेल्स हैक कर ली जाती हैं, तो इन सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से भी लोग ई कॉमर्स से दूर भागते हैं। तो ये दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। अब कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन वाइंड अप टुडेज क्लास। आज सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी जिसमें मैंने आपको ई कॉमर्स के बारे में बताया कि ये क्या है, कैसे ये बिजनेस से कम है और कौन कौन से इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं।
अब आप बताइए, आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड। ओके, सो यहाँ पे कृष्णा मिश्रा। हेलो हाँ जी बोलिए। मैम, इतना जानना था कि जो इसकी डिसएडवांटेजेस हैं वो तो अब कंपनियां उसको सॉल्व कर ही देती हैं मैक्सिमम टाइम। तो मैम जैसे इसमें एक जो मेरे को गलत लग रहा है कि लैक ऑफ पर्सनल इशू, मैम ये समझ नहीं आया मेरे, क्योंकि अब तो कंपनियां आपको कोई हाँ चीज खरीदनी है, ठीक है, अब आपको सेलर के बारे में नहीं पता। इवन हमारे साथ भी कई बार होता है कि हम Amazon से लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है अगर कोई गड़बड़ हो गई, अगर कोई चीज में गड़बड़ हो जाती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कोई आइटम लिया है तो किसी शॉप से लिया तो हम जाके इजीली उनसे बोल देते हैं। लेकिन अगर हमने Amazon से लिया होता है तो हमें काफी कॉल्स करनी पड़ती हैं कस्टमर केयर पे, और फिर वो आते हैं, कई बार नहीं भी आते, कई बार अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो जब हमारा ट्रस्ट होता है किसी नॉर्मल शॉपकीपर पे, सपोज मैं बहुत सालों से किसी शॉप से सामान खरीद रही हूँ, तो मैं Amazon से लेने की बजाय वहां से लेना चाहूंगी, क्योंकि एक पर्सनल टच है, मुझे पता है कि सेलर अच्छा है, वो मुझे सही चीज देगा। जो भरोसा मैं Amazon पे नहीं कर सकती या किसी और चैनल पे नहीं कर सकती। Amazon पे क्या है कि आपको कई बार फेक प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। यूजुअली हम शूज वगैरह Amazon से लेना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो कॉपी हो सकते हैं। हम रादर देन परचेजिंग देम फ्रॉम Amazon, हम शोरूम में जाके लेना पसंद करते हैं ताकि हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल सके। सो दिस इज द लैक ऑफ ट्रस्ट एंड लैक ऑफ पर्सनल टच, जिसमें पर्सनली आप किसी चीज को नहीं देख पाते या जान पाते। कई बार हम कपड़े लेना चाहते हैं तो कपड़ा हमें पता नहीं चलता कि वो किस तरीके का कपड़ा है, देखने में वो अच्छा लगता है लेकिन जब वो डिलीवर होता है वो उस तरीके का नहीं होता है। तो इन केसेस में हम शोरूम में जाके कपड़ा खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है ई कॉमर्स का। फेक एडवर्टीजमेंट टाइप, फेक एडवर्टीजमेंट कह सकते हो, या फिर वो फेक नहीं करते लेकिन हम उसको पर्सनली फील नहीं कर पाते चीज को, इसीलिए वो खरीदते नहीं है वहां से। उनकी तरफ से फेक एडवर्टीजमेंट नहीं हो रही है लेकिन हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट दक्ष। हेलो, हाँ जी आफ्टरनून मैम। बोलिए। मैम, आई वांट टू आस्क कि जो डिलीवरी टाइम है इसमें ज़्यादा होता है, ज़्यादा डिलीवरी टाइम लेते हैं मैम ये ऑनलाइन पे, ठीक है मैम। तो इनको हम कॉल करते हैं तो फिर ये इश्यूज हमें इतना क्यों बताता है कि ये इशू हो सकता है, ये इशू हो सकता है, तो ऐसा क्यों होता है इसमें? यानी डिलीवरी टाइम क्यों लेते हैं इतना, आप ये पूछना चाह रहे हैं? यस मैम, क्योंकि कितनी बार से हम ऑनलाइन मंगाते थे मैम, पहले तो बोलते हैं कि इट विल डिलीवर इन 2 days, मतलब 2 दिन का टाइम देते हैं, फिर मैम ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, ऐसा क्यों होता है मैम? एक्चुअली क्या होता है कि कई बार इन्वेंट्री में उनके पास नहीं होता, वो एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम दिखाते हैं, लेकिन ड्यू टू कुछ रीजंस की वजह से, जैसे कई बार वेदर कंड्यूसिव नहीं है, या फिर उनका जो डिलीवरी बॉय है उसकी तबीयत खराब हो गई है, या फिर उनकी इन्वेंट्री में नहीं है, या फिर उनको कहीं दूर से लाना है, उनकी फ्लाइट लेट हो गई है, तो ये सारे रीजन हो सकते हैं जो डिलीवरी में लैग आता है। और एक ये भी है कि अब यहाँ पे बाउंड्रीज नहीं है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या फिर वेयर हाउसेस ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे इनको सस्ता पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, मैंने लास्ट मंथ एक पर्स ऑर्डर किया था। अब वो पर्स जो है वो दिल्ली में इजीली अवेलेबल है, क्योंकि बैगेट के शोरूम अलग अलग जगह काफी हैं। मैंने एक बैगेट का पर्स ऑर्डर किया था, लेकिन वो पर्स जो है वो महाराष्ट्र से आया, और इसीलिए उसको आने में ऑलमोस्ट 1 हफ्ता लग गया, जो कि मैं इजीली दिल्ली में जाके कहीं से भी ले सकती थी। अब ये क्यों हुआ? वो तो दिल्ली में अवेलेबल थे, लेकिन
बैगेट ने ये देखा कि उनको सस्ते में वेयर हाउस कहाँ मिल रहा है, उनको दिल्ली में जगह नहीं मिली होगी या महंगी जगह मिली होगी, तो उन्होंने अपना जो भी जिस सेलर से अमेज़न पे जो सेलर था उस सेलर ने अपना वेयर हाउस जो है वो महाराष्ट्र में रखा हुआ था। तो महाराष्ट्र से पर्स पहले दिल्ली आया, दिल्ली से पहले गुड़गांव आया, फिर दिल्ली आया, इस तरीके से उसको 1 हफ्ता लग गया आने में। तो ये एक रीजन हो सकता है कि क्यों डिलीवरी टाइम ज्यादा लगता है। ओके मैम। अच्छा और एक चीज और पूछ रही है, जैसे मैम कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जैसे हम शॉप से लेने जा रहे हैं तो मैम वो आइटम मिलता है हमें 400 का, और जब ऑनलाइन मंगाते हैं तो कितनी बार हमें 150 का भी मिलता है मैम। मैम कितनी बार मैंने रिलायंस से मंगाया, बहुत ज्यादा सस्ता आइटम, मतलब जो 400 का होता है 150 में मिलता है मैम। ऐसा क्यों कि मतलब इतना सस्ता क्यों कर देते हैं? उसका रीजन भी यही है, देखो अगर दिल्ली में वो चीज मिल रही है तो हो सकता है कि उनको शॉप के ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हो। जैसे अगर मैं किसी शोरूम में जा रही हूँ जो कमला नगर में है, कमला नगर में रेंट बहुत हाई है, या फिर खान मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो खान मार्केट जो है वो पूरे एशिया की सबसे महंगी मार्केट्स में से एक है, तो वहां पे जो रेंट देना पड़ता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब सेलर क्या करेंगे, वो उसी में से पैसा निकालेंगे, तो वो जितना एमआरपी होता है उस एमआरपी में बेचते हैं। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कर रही हूँ तो मुझे वेयर हाउस खान मार्केट में रखने की क्या जरूरत है, मैं किसी भी एक गांव में रख सकती हूँ जहाँ पे मुझे बहुत सस्ती जगह मिल रही है, और मुझे फिर वो एमआरपी पे बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं लोगों को हेवी डिस्काउंट दे सकती हूँ। तो ऐसा होता है, इसीलिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पे चीजें सस्ती मिल जाती हैं क्योंकि उनको शोरूम का खर्चा उठाना नहीं पड़ रहा, एम्प्लॉयज का खर्चा नहीं उठाना पड़ रहा, जो अदरवाइज फिजिकल शॉप में उठाना पड़ता है। या मैम उसमें उठाना पड़ता है बिल्कुल। ओके थैंक यू मैम। वेलकम। नेक्स्ट, बस हम एक क्वेश्चन और लेंगे अभी बिकॉज इट्स ऑलरेडी 4:10। निकुंज, निकुंज। जी मैम। मैम ये पूछना इसके अंदर आपको, जैसे अपन कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसके अंदर सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, कोई भी चीज खराब हो जाती है, जैसे अपन इलेक्ट्रॉनिक आइटम मंगाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक अपन रिटर्न करते हैं तो उसके अंदर आप वापस पैसे नहीं मिलते, कारण नहीं, रिटर्न पे पैसे मिल जाते हैं। मैम इलेक्ट्रॉनिक आइटम में नहीं मिलता। इलेक्ट्रॉनिक में भी मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो 15 डेज बैक उसका गारंटी देते हैं, तो कोई भी चीज खराब होती है तो वो मिल जाते हैं, या फिर उसकी जो वारंटी होती है उसके अकॉर्डिंग वो आ जाते हैं। जी मैम थैंक यू। क्या आप गलत कह रहे हैं कि नहीं मिलते हैं? मिलते हैं। इवन इलेक्ट्रॉनिक आइटम, क्या मैंने लास्ट मंथ नेल पेंट मंगाया था, वो नेल पेंट टूटा हुआ आया था तो उन्होंने वापस लेके और मुझे सारे नए नेल पेंट दिए थे। तो वो कोई भी चीज होती है वो रिटर्न ले लेते हैं। और मैम इंट्रा ट्रेड क्या होता है? सॉरी, इंट्रा ट्रेड? इंट्रा ट्रेड? यस मैम। इंट्रा ट्रेड का मतलब होता है जब आपस में सेलर्स ट्रेड करते हैं, जैसे एक सेलर ने दूसरे को बेचा, आपस में ही जब ट्रेड कर रहे होते हैं कस्टमर्स को छोड़ के, वो इंट्रा ट्रेड। ओके मैम थैंक यू। So that's all for today. In next class we will discuss that what is the need of e-commerce and what are the technical components available in e-commerce. So आज के लिए सिर्फ introductory class थी, introduction was enough, and see you in the next class. Bye bye, take care.